فرمائیے کیا بات ہے؟ آپ بتائیے کیوں بلایا ہے؟ ہماری 3 تجویزیں ہیں، فلسطین سے متعلق ہے، ایک تجویز وقت سے متعلق ہے، اور ایک تجویز جو واقعات ہوئے ہیں ابھی کشمیر کے اندر ان سے متعلق ہے۔ بس یہی 3 تجویزیں، باقی تو ہمارا ایک تربیتی پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے ہندوستان کے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری جمعیت کی شاخیں ہیں ہم نے ان کو بلایا تھا، صدر اور سیکریٹری کو، اور ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر ان حالات میں اور اس ماحول میں جب گورنمنٹ کی بنیاد ہی جس پتھر پر رکھی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے، اس کے اندر کس طرح محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں مذہب پوچھ کر دھرم پوچھ کر لوگوں کو مارا گیا، آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، بے گناہ کو قتل کرنا چاہے وہ کتا ہو چاہے بلی ہو، اسلام ایسا مذہب ہے جو اس کو بھی گناہ اور پاپ کہتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ بلی کو مارنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن عذاب کا اس کے لیے وعید کی ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو ایک انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے شرافت والی مخلوق انسان کی ہے، اس کو کیسے بے گناہ کو قتل کیا جائے گا اور اسلام اس کی اجازت دے گا؟ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے کچھ، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں، اور ہر مذہب کے جاہل ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی کوئی تائید نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے، جو قاتل ہے اسے قتل کیجیے۔ کئی لوگ قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو۔ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا حوالہ دیتے ہیں۔ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی حوالہ دیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو کہاں ہے بتائیے؟ میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے؟ بولو جس طریقے سے پاکستان پھر یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو؟ سورہ توبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، نہیں، جانکار تو نہیں قرآن کا، آپ جانکار ہیں۔ ہاں، تو آپ مت پوچھئے ایسا سوال جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جب پہلے جانیے پھر اس کے بعد جائیے۔ نہیں، لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور ہوگا۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد سن 6 میں، جو اسلامی سن ہے، سن 6 میں مکے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، 10 سال کا معاہدہ۔ اس 10 سال کے معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں میں اگر آپ کو بتاؤں گا، بالکل نیچے اتر کے معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں منظور ہے، اس سال تم یہاں عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو گے۔ فرمایا ہمیں منظور ہے۔ کہا جب آؤ گے 3 دن کے لیے رہو گے، کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ کہا ہمیں منظور ہے۔ ہر چیز کو منظور کرتے کرتے صلح کر لی 6 مہینے کی، 10 سال کے لیے۔ 2 سال بھی نہیں گزرے، انہوں نے مکے کے لوگوں نے اس صلح کو توڑ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر صلح کرنے کے بعد توڑ دینا اس کا یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی مہلت دو، وہ مہینے جن مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے اسلام میں، جب وہ مہینے گزر جائیں تب جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور قتل کرنے والوں کو سامان مہیا کیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ان لوگوں کو مارو۔
आज भी दुनिया के अंदर यही होता है। दुनिया कहती है बड़े मुतमद्दिन हैं। क्या होता है, ये क्या हो रहा है इसराइल के अंदर? अमेरिका ही तो करा रहा है, बम तो अमेरिका ही के हैं जिनसे कत्ल किया जा रहा है। ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। ऐसे ही है, उन्होंने मुआहदे को तोड़ा। उनसे कहा गया कि जिन लोगों ने मुआहदे को तोड़ा है उनको उसकी सजा को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता है इस्लाम उसे कत्ल कर दे। इसको समझना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं इसे याद रखो। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि जो आदमी जो चाहे उसके बारे में कह दे। कुल अल्लाह के नबी की नबूवत की जिंदगी 23 साल है। उसमें आपने जो कुछ किया है, आज सैकड़ों करोड़ मुसलमान सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आखिर कोई हकीकत है तब तो क्या सारी दुनिया बुद्धू है? उसे कुछ पता ही नहीं, वो इस्लाम को कैसे कबूल कर रही है? सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और इस्लाम के दरवाजे खुले हुए हैं। कुरान की तफसीर और व्याख्या की जितनी किताबें दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के किसी मजहब की व्याख्या में इतनी किताबें नहीं होंगी। और हर जमान के अंदर है। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। कैसे आपने कह दिया कि जहाँ देखो काफिर को वहाँ कत्ल कर दो? बड़ी अजीब बात है। पहलगाम के बाद से मुसलमानों को जगह जगह जो निशाना बनाया जा रहा है, गलत है। आगरा का मामला हुआ, नैनीताल की मस्जिद का हो गया, एक मुस्लिम पुलिस वाला है और वहाँ को पिटाई उसकी कर दी गई है। तो इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है नफरत की, इसलिए वो ये कर रहे हैं। वरना ये नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मुजरिम हैं। अरे भाई, अगर कसूर है तो उन 3, 4, 5, 7 आदमियों का जिन्होंने कत्ल किया है, जो जी चाहे कर दो। मैं अपने घर बैठा हुआ, मैंने तो सुना किसी से कि भाई ऐसा हो गया, मेरा क्या जुर्म है कि आप मुझे कत्ल करने लगेंगे? उन्होंने जो किया, अगर यूं कहो कि वो 70% गुनाह किया, बुरा किया, मैं कहूँ ये 100% बुरा है। क्यों किसी को कत्ल करते हो? अपने मुल्क के अमन अमान को क्यों आग लगाते हो? इसमें पाकिस्तान का नाम आता है और मैं नहीं जानता हूँ किसका नाम है, उसे आप जानते होंगे। मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं पाकिस्तान जाता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मेरा कोई अल्लाह का बंदा फ़ोन कर लेता, भाई दुआ कर दो मेरे लिए, मैं उसके लिए दुआ कर देता हूँ। और कुछ भी नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं पाकिस्तान से। अगर जिसने भी किया दुनिया में, किसी के जुल्म के लिए किसी ने अपनी ज़मीन को, अपने हथियार को, अपने आदमियों को वसीला बनाया है, हम उसको कंडम करते हैं। चाहे वो अमेरिका हो जो कत्ल कर रहा है वहाँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चाइना हो। जुल्म तो जुल्म है, हम इस जुल्म को कबूल नहीं करते। लेकिन अब ये पानी जो बंद किया जा रहा है, या जैसे सिंधु का मामला हुआ, आपको लगता है ऐसा कि ये इतना इजी है, आसान है कि पानी रोक दीजिए? अरे भाई, 2:30 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मेरा खाना बंद कर दिया। अब बताओ जुल्म है कि नहीं है जुल्म? अरे भाई, मुझे क्या लेना है यार? पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं। वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफरत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कई दिन जिंदा रहता हूँ, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। कैसे जिंदा रहेगा मुल्क? मुल्क तो प्यार और मोहब्बत से जिंदा रहता है मेरे भाई। जितने प्यार और मोहब्बत को आग लगा दी, उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। कश्मीर में जितने आतंकवादी थे, उनके जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले थे, जो कुछ आतंकवादियों के घर भी गिरा दिए गए हैं कश्मीर में। आप
आप इन कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तारीफ करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उनके ऊपर बुलडोजर का चलाना मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई आदमी तारीफ करेगा। कितना बड़ा फेलियर मानते हैं मदनी साहब आपके, अगर पाकिस्तान से आतंकवादी अंदर तक घुसकर आए और वो भी कश्मीर जैसी जगह जहां हर 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में चेकिंग होती है, वहाँ कितना बड़ा आप मानते हैं कि लैप्स है ये? मैं से क्यों ये बात कहते हो? मैंने पहले दिन ये बात कही थी, सबसे पहला बयान मेरा आया था, मैंने ये बात कही थी कि ये बात सोचने की है कि आतंकवादी वहाँ पहुँचे कैसे। कश्मीर वो जगह है जहाँ कदम कदम पर, चप्पे चप्पे पर आपको फौज का आदमी मिलेगा, रिवाल्वर या बंदूक लिए हुए। एक जगह जहाँ 2000 से लेकर 3000 तक सैर व तफरीह करने वाले कहाँ कहाँ के दुनिया के किस किस खित्ते के लोग मौजूद हैं, और वहाँ न कोई पुलिस वाला है न कोई फौजी है, और इतनी दूर हैं कि इस वाक़े के बाद बंदूक से कत्ल किया है, उसकी आवाज़ें हो रही होंगी, 1.5 घंटे तक वहाँ कोई आया नहीं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर भी नज़र करनी चाहिए, वाक़या क्या है, क्या हुआ। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि इसको देखे और जहाँ से ये सोत फूट रहा है उस सोत को बंद करे, वरना आज हुआ है कल को फिर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो पुलवामा जो हुआ था उसका भी आज तक नहीं पता? मेरे भाई नहीं पता तो मुझसे क्या पूछते हो? मुझे यार मैंने थोड़ा ही कराया था। आप लोग शिमला की मस्जिद को लेकर भी कोर्ट गए थे, बात हुई थी आपकी शिमला की मस्जिद को लेकर, सजौली मस्जिद को लेकर। कहाँ की शिमला की सजौली मस्जिद? नहीं, मैं उसमें कल वहाँ के एमसीडी कमिश्नर ने उसको पूरी मस्जिद को ही गिराने का ऐलान कर दिया, कर दिया। एक मस्जिद 50 मस्जिदें गिर गई और 50 मस्जिदें गिरेंगी। पुराने कानून के अंदर ये है कि अगर किसी शख्स ने मस्जिद बनाई, मकान बनाया, घर बनाया और वो पाकिस्तान चला गया, उसकी सारी जायदाद कस्टोडियन के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर उसने वक्फ किया है तो वो वक्फ महफूज रहेगा, वो कस्टोडियन में नहीं आएगा। ये पुराना कानून है, इस नई तरमीम ने उस कानून को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि जितनी मस्जिदें बनाई हुई हैं मुजफ्फरनगर के अंदर उस ज़माने की, उन सब मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा। आप एक मस्जिद करो रहे हो, मैं समझता हूँ कि 50 नहीं सैकड़ों हज़ारों मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, कानून ये और कहा जाता है, मुझे हैरत होती है कि आदमी खड़े हो गए कहता है कि हमने हिफाजत के लिए बनाया। अरे जालिमों, हड़प करने के लिए बनाया, कह रहे हो हिफाजत करने के लिए बनाया। ये है कानून, आप देख लीजिए उठा करके दफ़ा 108 और 107। कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, आइए देखा जाएगा क्या होगा। हम समझते हैं कि कोर्ट जो फैसले कर रहा है आम तरीके के ऊपर वो फैसले अदल व इंसाफ के फैसले होते हैं। हमें तवक्को है खुदा की जात से कि अदल व इंसाफ का फैसला होगा। मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए जो अलग-अलग वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉल्स दे रहे हैं, उसको आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप सदर से पूछिए, जमीयत उलमा के बारे में मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। जमीयत कितना साथ है, कितना साथ नहीं है? किसके साथ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हर अच्छे काम में मैं आपके भी साथ हूँ। कोई काम गलत करते मैं किसके साथ हूँ? मैं तो नहीं किसी के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जो अबूरी रोक लगी है उस पर मरकजी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है और इसको गलत कहा गया है। हाँ, उसकी हकीकत कल को मालूम हो जाएगी। अभी अयूब जफर साहब थे यहाँ, उन्होंने वो बात बताई तो वो कहते हैं कि वो चीज़ कोई हकीकत नहीं है, उसके अंदर गलत है जो उन्होंने हलफनामा दिया, और उसकी कल को हकीकत आ जाएगी सामने। मदनी साहब, गुजरात में बांग्लादेशी कैदियों के नाम पर 800 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने देखिए,
अगर गैर कानूनी तरीके के ऊपर बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं, वही नहीं, हिंदुस्तानी गैर कानूनी तरीके पर सऊदी अरब में रहता है, मुजरिम है, उसे निकाल ही देना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बांग्लादेशी नहीं, हम बंगाली हैं, हमारी ज़बान बंगाली है, चलो हम तुम्हें मिला देंगे, दिखला देंगे। अगर सबूत है कोई कि ये बांग्लादेशी आए थे, वीज़ा लेकर के आए थे, यहाँ रह गए, गवर्नमेंट के पास सबूत है, गर्दन पकड़ के धक्का दे के निकाल दो। लेकिन अगर वो बंगाली हैं, आसामी हैं, त्रिपुरी हैं और ज़बान उनकी वही है जो बांग्लादेश में बोली जाती है, तो सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर, जबकि आपका मुल्क और वो मुल्क एक ही पहनावा, एक ही ज़बान बोलता है, आप किसी के हाथ को पकड़ करके बंगाली बोलता है लिहाजा बांग्लादेशी है, न करेंगे हम इसके साथ नहीं। अगर वो बांग्लादेशी हैं और वाक़अतन बांग्लादेशी, आप धक्का देके निकाल दीजिए, हमें क्या इससे लेना देना है। जब भी आतंकी हमला या दहशतगर्दाना हमला होता है तो इस्लाम से जोड़ा जाता है। हाँ। वो किसी भी तरह से, चाहे वो कलमा पढ़कर उन्होंने कुछ इस तरह के या मज़हब पूछ कर किया है, जब भी इस तरह चीज़ें होती हैं पाकिस्तान, मेरे भाई, बढ़ने वाला दुनिया में मजहब इस्लाम ही है, इसको किस तरह रोका जाए? सारी दुनिया इसके लिए असबाब फराहम कर दे, इस्लाम की इस बढ़ोतरी को रोका किस तरह जाए? ये एक सबब है उसके रोकने का कि इस्लाम अमन व अमान की जगह कत्ल व गारत गरी फैलाता है, वरना इस्लाम नहीं करता ये बात। आखिर क्या बात है कि जहाँ कोई मामला जुल्म का होता है इस्लाम की तरफ लगा दिया जाता है। इस्लाम की तस्वीर को पेश किया जा रहा है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो काफिर को कत्ल करने के लिए कहता है, बिला वजह किसी को कत्ल कर देता है, दहशतगर्दी की तालीम देता है। क्यों है इस्लाम ऐसा मजहब? भाई क्यों नहीं है? सिख मजहब ऐसा क्यों नहीं है? जैन मजहब ऐसा क्यों नहीं है? बुद्ध से क्यों नहीं? सारी दुनिया के मज़ाहिब में तन्हा एक इस्लाम है, इसलिए कि सारी दुनिया के लोग अपने धर्म को छोड़कर जिस धर्म के अंदर आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, वो सिर्फ एक मजहब है इस्लाम। सारी दुनिया इस चक्कर में है कि इस्लाम की तस्वीर को इतना ख़राब कर दो कि ये जो बढ़ोतरी का सिलसिला है इसे ख़त्म कर दें। वो बढ़ोतरी का सिलसिला तो बंद नहीं हो रहा है यार। मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर इसमें किसी को इख्तिलाफ हो बताओ, इतने आदमी हैं। अब वो तो वही जो इन्होंने पूछा था वही आप पूछ रहे हैं, फिर दोबारा वहीं पहुँच गए। थोड़ा सा अलग है। अच्छा, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, आजकल वो मौलाना के नाम से जाने जा रहे हैं, उन्होंने एक हफ्ते पहले कई इश्तियाल अंगेज बातें की थी, वो वीडियो वायरल है, वो हम सब मेरे भाई, मैं इश्तियाल अंगेजी को और लड़ाई को मसले का हल नहीं समझता। देखिए, मैं लरसता हूँ जब ये बात आती है कि दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई होगी, घबराता हूँ। दोनों मुल्क की एकमी ताकतें, पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, तो मरता क्या न करता, मुझे उस वक्त से डर लगता है। इसलिए मैं जंग का मुखालिफ हूँ, लेकिन करने वालों को शौक है भाई, जो जी चाहे कर दो। मेरे हाथ में तो एक रिवॉल्वर भी नहीं है, तिनका भी नहीं है जिससे आपके हाथ में रिवॉल्वर है, तोप है, आप मार लो तोप उठा कर। लेकिन हल नहीं है। और कितनी जंगें पाकिस्तान की हो चुके हैं, ये बताइए क्या हल निकला? अलावा बर्बादी की कोई चीज़ है? जिस दिन जंग होगी हिंदुस्तान के पैसे की कीमत ज़मीन पर आ जाएगी। मैं नहीं समझता हूँ, मैं उस दिन से डरता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जंग ना हो, वरना तबाही आएगी मुल्क के अंदर। हो सकता है कि आप 10 कदम आगे बढ़ जाएं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें, लेकिन आप खुद भी बर्बादी आएगी। पाकिस्तान को भी तो सुधरना चाहिए।
अब सुधरना चाहिए, मैं क्या, मुझे भी सुधरना चाहिए, आपको भी सुधरना चाहिए, हर एक को सुधरना चाहिए। सुधरना तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हज़रत आपने कहा कि इजराइल और फलस्तीन को लेकर कुछ इंतजाम डाल देता हूँ, उसके बाद इजराइल के खिलाफ हमास जो है सामने लड़ाई हुई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियोज ऐसे सामने आए जिसमें हमास पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं उनके साथ खड़े हुए। आपका क्या मानना है, हमास एक तरफ इजराइल के साथ नहीं, पाकिस्तान के मैं जानता नहीं हूँ, ये आप कह रहे हैं, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, आ सकता है, खड़े हो सकते हैं वो, लेकिन हमास जिन हालात से गुजर रहा है वो भी दुनिया के सामने है। किस तरह अमेरिका के बने हुए बम से किस तरह बमबारी हमास के ऊपर और फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है, ये भी सारी दुनिया के साथ है। हो सकता है आदमी डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है, हो सकता है उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया हो, पाकिस्तान का सहारा हो सकता है चीन का सहारा लेने लगे, हो सकता है रूस का सहारा लेने लगे, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जिस बेदर्दी के साथ तबाह कर दिया गया, भाई मैं तो तारीख में देखता नहीं हूँ कि किसी मुल्क के रहने वालों को इस तरह बर्बाद किया गया हो जिस तरह फ़लस्तीन के रहने वालों को बर्बाद किया जा रहा है, और बड़ी ताकतें देख रही हैं। और मैं इन ताकतों की, अरब ताकतों की ये सूझबूझ की बात समझता हूँ कि ये इस जंग के अंदर शरीक नहीं हुए, और अगर खुदा न खास्ता ये शरीक हो जाते तो सारी यहूदी और ईसाई ताकतें मिल करके जिस तरह फ़लस्तीन को बर्बाद किया, इसी तरह दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरैन, सऊदी अरब को भी इसी तरह बर्बाद कर। ये बड़ी ख़राब चीज़ है जो जंग हो रही है, बड़ी बर्बादी की जंग है। आज एक बार फिर से हूती ने अटैक किया है, हूती ने एक बार फिर से अटैक किया इजराइल के ताल अबीब के एयरपोर्ट पे। टर्की ने हूसी यमनी ने होगा, हो सकता है ये पहले भी कई मरतबा अटैक कर चुका है वो। मौलाना ऐसी बहुत सी पाकिस्तानी खवातीन जो शादी होकर भारत आई, उनकी किसी के बच्चा 6 महीने का, किसी का 11 महीने का, हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी और कवर किया है कि दूध पिलाती माओ को वापस जाना पड़ा। ये मुल्क का कानून है, कानून जो कहता है उसको पकड़ना चाहिए। अगर कानूनी उनका हक यहाँ रहने का नहीं था तो उनको अलग कर देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कानूनी हक था तो उनके साथ रियायत होनी चाहिए। यार मैं तो सियासी आदमी नहीं, मुझे क्यों पूछते हो? कोई हर्ज नहीं है, मैं इसमें क्या हर्ज समझता भाई, जात के एतबार क्या हुआ इसके अंदर? भाई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है किसके अंदर कितनी ज़्यादा। मसला तो वो है जो ज़्यादा हैं, जाहिर है कि ज़्यादती की बुनियाद के ऊपर उन्हें हक ज़्यादा मिलेगा। ये असल में जो परेशानी का मसला है वो तो ये है कि जो गिरी हुई ज़ातें हैं जिनको कानून ने हक दिया है, लेकिन ऊंची ज़ात के लोग ऊपर बैठ करके उन्हें दबाए चले जा रहे हैं। अगर ज़ाती एतबार से जनगणना होगी, इसका ख़तरा है कहीं वो नीचे से उठ करके अपनी ज़ात की बुनियाद के ऊपर आगे ना आ जाए। आप किस ज़ात के हैं बताइए? ब्राह्मण हैं आप? ये क्या बात है, केरला में ज़ात नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो जनगणना कैसे होगी बका केरला में जब जाती नहीं है तो? हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई अगला हम क्या करेंगे? आपने तलाक के मसले के ऊपर इस्लाम के कानून के खिलाफ फैसला कर दिया, हम क्या करेंगे? आपने बाबरी मस्जिद का फैसला बावजूद के जो के 70 साल तक हमने लड़ा, आपने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है। यही तो हमने 70 साल तक लड़ा है। जमीन तो उलमा लड़ रही थी अखाड़े के साथ। वो कहते थे कि ये राम जन्मभूमि है, हम कहते थे राम जन्मभूमि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राम जन्मभूमि नहीं है, अपनी जगह मस्जिद बनी हुई है। इसके बावजूद आपने बाबरी मस्जिद दे दी अखाड़े को। हक हमारा था, दे दिया, हम खामोश है।
लेकिन मैं भी मरूंगा और दुनिया का हर आदमी मर जाएगा। कल को आने वाला ये कहेगा कि मुसलमान की जगह के ऊपर मस्जिद दे दी, छीन ली मुसलमान से। हमने क्या कर दिया? हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उससे हम क्या करेंगे? हम तो मस्जिद को, हमें मस्जिद उस जगह थी जहाँ बाबर ने मस्जिद बनवाई, वो हमारी मस्जिद थी। और मस्जिद बनाने के लिए हम गवर्नमेंट से भीख मांगे कि तुम हमें ज़मीन दे दो, हम बनाएंगे। हमारे अंदर ताकत है, हम अपने पैसे से खरीदेंगे और अपने पैसे से मस्जिद बनाएंगे। हम क्यों दूसरे का अपने ऊपर एहसान दें? हमारी इतनी मस्जिदें बनी, क्या गवर्नमेंट बनाती है उन मस्जिदों को? अरे आप जन्नत आसमान से लेकर बना दो और एक हिस्से में जहन्नम बना दो, चूल्हे भाड़ में जाए, हमें क्या लेना है इससे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।